Hello class 12 students. Today we'll cover the topic of demand in economics. So demand for a commodity refers to the quantities of a commodity which consumers are willing and able to purchase at various possible prices during a particular time period. I repeat by highlighting the main points, key points. Okay, how? Demand for a commodity refers to the quantities of a commodity विच कंज्यूमर्स आर विलिंग. कंज्यूमर्स उपभोक्ता होते हैं. क्वांटिटीज मतलब कितनी मात्रा में कोई प्रोडक्ट वो लेना चाह रहे हैं. कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल. विलिंग मीन्स वो खर्च करना चाह रहे हैं और वो परचेजिंग पावर भी है. टू परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर लर्निंग पार्ट, बट लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं इसको. पॉइंट्स टू बी नोटेड अबाउट डिमांड आर 3. Demand, beta, if you ask an English teacher or dictionary meaning would be desire. But in economics, demand means effective desire. Demand is basically equal to desire for a product plus willingness to spend money on it plus purchasing power. यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं. There's a person, he is very fond of Mercedes car. Okay, जब वो Mercedes कार देखता है तो उसका बड़ा मन करता है मेरे पास, काश मेरे पास एक कार हो, लेकिन वो काम नहीं करता. He is unemployed. He doesn't want to work also. Okay, so desire तो है, but we cannot call it demand in economics because he is not willing to, he doesn't have the money, तो spend कहाँ से करेगा. Okay, तो desire है खाली ये. Then take second example that there's a rich person, he likes Mercedes car, he can afford also, पैसा भी है उस पे, लेकिन वो कंजूस है. यानी कि डिजायर है Mercedes के लिए, पैसा भी है, लेकिन वो कंजूस है तो विलिंग नहीं है खर्च करने के लिए, तो ये भी डिमांड नहीं है. Let's take third example. एक there's a rich person, he likes Mercedes car, he wants to buy, he has a desire for Mercedes car, पैसा भी है, he has the money and means purchasing power है, he can afford to buy Mercedes and he's willing also to spend money, खर्च करने के लिए तैयार भी है. तो ये जब तीनों चीजें होंगी, when these three things will be there, desire, willingness to spend and the purchasing power, means you have the money to afford, to buy that, तो then वो बन जाएगा demand. Okay. Number 2, demand is always expressed at a particular price. डिमांड हमेशा जब हम किसी प्रोडक्ट की बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है, एप्पल्स की इतनी डिमांड है, तो उसका प्राइस हम साथ में मेंशन करेंगे, क्योंकि देखा गया है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम डिमांड करते हैं उसकी. नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूं मैं. डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. चिल्ड्रन, आई अंडरस्टैंडिंग. सपोज एक मिल्क डेयरी है, मैं जाके वहां पूछता हूँ कि भाई साहब आपके मिल्क की जो है यहाँ पे डिमांड कितनी है. वो कहता है 200 लीटर्स. तो 200 लीटर्स खाली बोलना कोई सेंस नहीं बनाता. उसको ये बताना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, सर 200 लीटर जो आप मिल्क की डिमांड बोल रहे हो कि आप बेच लेते हो या लोग डिमांड करते हैं, ये एक दिन में है, इज इट फॉर वन डे, या एक हफ्ते का है, और इज इट फॉर वन वीक और वन मंथ. आई यू अंडरस्टैंडिंग? और टेक अनदर एग्जांपल, आई गो टू अ कार एजेंसी, लेट्स से आई आस्क कि भाई ये कार की क्या डिमांड है आपकी. वो कहते हैं 2 कार्स. तो 2 कार्स कब बेचते हैं? पर डे, per week or per month. That means demand you always express with a particular time period. And anything which you express over a particular time period is called a flow concept. Okay, it's a flow concept over a period of time. Could be 1 year, could be 1 month. We move to now determinants of demand, children. Factors affecting demand. वो चीजें, वो फैक्टर्स जिन पर डिमांड किसी प्रोडक्ट की निर्भर करती है. फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सबसे पहले तो कमोडिटी का प्राइस ही होता है. तो when the as indicated with the arrow, price upward pointing arrow means जो प्राइस बढ़ेगा, जो प्राइस इंक्रीज होगा, तो what happens? People don't like to spend more. So what will happen to quantity demanded? Quantity demanded, as you can see, will fall. Downward pointing arrow over here. Oh, I'm over here basically. When downward pointing arrow indicates कि डिमांड उसकी कम हो जाएगी. And when the price falls, जब प्रोडक्ट का दाम कम होंगे, सस्ता हो जाएगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. इज दैट क्लियर? तो लेट्स से आजकल समर सीजन है, मैंगो का सीजन है, अभी मैंगो चल रहा है, जो सफेदा आम है उसका रेट चल रहा है सपोज 100 रुपए किलो चल रहा है, तो लोग खरीद रहे हैं. लेकिन अभी जैसी और समर्स आएंगी तो हर जगह पे मैंगो बिकेगा. सपोज उसका प्राइस हो जाएगा 50 रुपीज, तो वही आदमी जो अभी सपोज 2 किलो ले रहा है, वो 5 किलो मैंगो खरीदेगा. तब कॉमन थिंग.
Common experience you must have this matlab. Then number 2 is income of the consumer. I would like to cover this a bit later, let's say, because it will take time. Then I'll make another video for that, for the remaining factors. अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर मैं इसलिए कह रहा हूँ टाइम लगेगा क्योंकि इसमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर को समझने के लिए बेटा हमें समझना है कि 3 प्रकार के गुड्स होते हैं. गुड्स आर ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की कमाई का असर देखने के लिए डिमांड पर, to analyze the effect of income of the consumer on a product. So we have to consider 3 kind of products, basically normal goods, inferior goods and inexpensive necessities. इनको आप समझिए. तो भाई नॉर्मल गुड्स तो क्या हो गए, क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, ओके, टीवी वगैरह हो गया. तो नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, इनकम, as you can see, as the income increases, demand for these goods increases, as pointed out here. ठीक है, अपवर्ड पॉइंटिंग एरो. जब आदमी की कमाई बढ़ती है तो ज्यादा कपड़े खरीदेगा, ज्यादा शूज खरीदेगा, ब्रांडेड क्लोथ्स. टीवी लेट्स से अभी ड्राइंग रूम में है तो फिर टीवी वो मे बी अलग अलग कमरों में बच्चों के लिए अलग, अपने लिए अलग टीवी वो लगवा दे. अभी एक सोफा सेट है, ही माइट लाइक टू बाय मोर सोफा सेट. इट्स लाइक दैट. अभी एक एक्टिवा है घर में तो उसी से छोड़ता है बच्चों को, वाइफ को ऑफिस, तो हो सकता है वाइफ के लिए एक और एक्टिवा ले ले, 2 व्हीलर ले ले. तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ताकि जब आपस एक बंदे की कमाई बढ़ती है तो वो डिमांड ज्यादा करता है नॉर्मल गुड्स की. एज सिंपल एज दैट. तो आप ग्राफ देख रहे हैं, वाई ओ एक्स एक्सेस, इनकम इज ऑन द वाई एक्सेस and quantity demanded is on the x axis. You can see if the income is OY 0, so what is the quantity demanded? It's over here, Q0. To understand, let's say income rises to Y1, so what is happening? Q1 quantity demanded भी बढ़ जाएगी. तो पॉजिटिव स्लोप है. इनकम और डिमांड का जो है नॉर्मल गुड्स के केस में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी नॉर्मल गुड्स की बढ़ेगी बेटा. देन वी मूव टू इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स गरीब आदमी यूज करता है, चीप क्वालिटी के होते हैं, लो क्वालिटी के होते हैं ये, जैसे ज्वार, मेज, ओके, चावल, राइस, चावल अलग अलग बहुत वेराइटी है चावल की. मोटे चावल होते हैं, राशन पे मिलते हैं, सस्ते होते हैं वो. और एक तरफ बासमती भी जो कॉस्टली होता है, और एक कुछ अलग वैरायटी होती है चावल की जो मिडिल क्लास लोग खाते हैं. मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ. तो जब उसकी इनकम बहुत कम है तो लेट्स से मोटे चावल खरीद रहा है. सपोज वो सपोज 1 किलो खरीद रहा है, अभी इनकम बहुत कम है, तो जब खत्म होंगे तब दोबारा लेने जाएगा वो. तो जब उस यहाँ पे है उसकी इनकम, देखो वाई एक्सिस पे देखो, रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, अभी OY1 है उसकी इनकम. तो वो अभी उतने राइस खरीदता है मोटे चावल जितनी उसकी आवश्यकता है Q0 पे. ठीक है, अब उसकी इनकम थोड़ी बढ़ी है, मान लो Y2 हो गई उसकी इनकम, थोड़ी सी बढ़ी देखो, तो क्या करेगा, 1 किलो की जगह ही विल बाय थोड़े ज्यादा. बोलेगा बार बार नहीं जाना पड़ेगा लाला पे, थोड़े ज्यादा खरीद लेता हूँ. 3 किलो खरीद रहा है वो, बट वो खरीद रहा वही है मोटे चावल. अब लेट्स से अप टू दिस लेवल, अब उसकी इनकम और बढ़ गई, देखो Y3 पे कर दी मैंने. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखेंगे आप, इफ आई प्लॉट दिस, इसकी मैं वर्टिकल लाइन अगर खींचता हूँ तो नीचे वापस रिवर्स मार लिया इसने. जब इनकम लेवल इंसान का और बढ़ेगा कि वो गरीबी रेखा से पार हो गया, मतलब अभी इज नो मोर अ पुअर पर्सन, वो लेट्स से मिडिल क्लास में आ गया. तो जब कमाई कमा रहा है, अच्छा कमाई, इनकम बढ़ गई उसकी, तो व्हाई वुड ही बाय द सेम चीप क्वालिटी ऑफ राइस? वो वही मोटे चावल नहीं खरीदेगा, वो वाले चावल जो सस्ते चावल है वो कम खरीदेगा, और वो एंजॉय करना चाहेगा बेटर क्वालिटी ऑफ राइस, बेटर काइंड ऑफ फूड. आई होप दिस इज क्लियर. तो इसमें क्या है, क्या बताया मैंने कि इनकम जब इंक्रीज होगी बेटा, तो पहले क्वांटिटी डिमांड थोड़ी, जो डिमांड है वो थोड़ी बढ़ेगी. इनकम थोड़ी और बढ़ी तो ये थोड़ी और बढ़ेगी डिमांड उसी चीज की, इंफीरियर गुड्स की. इनकम अगर और बढ़ी कि वो अब पुअर कैटेगरी में नहीं रहा, तो वो फिर क्या होगा, इस इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो बढ़ने की जगह कम होने लगेगी, क्योंकि वो किस पे स्विच ओवर कर जाएगा, वो बेहतर यानी कि सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट पे स्विच ओवर कर जाएगा. जैसे मेरे एग्जांपल, मोटे चावल की जगह सपोज वो बासमती
राइस थोड़ा बहुत लेने लगेगा टू एंजॉय द टेस्ट, टू एंजॉय हिज मील। आई होप इट्स क्लियर। देन वी मूव टू इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। नेसेसिटीज वो जरूरत की चीजें हैं जो जैसे नमक हो गया, चीनी हो गई, माचिस हो गई, मैच बॉक्स। इनएक्सपेंसिव, बहुत महंगे नहीं होते ये। तो इसमें क्या है कि क्वांटिटी परचेज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम अप टू अ सर्टेन इनकम लेवल। देखो पहले सपोज इनकम, ये आप ग्राफ देखिए, इनकम यहाँ पर है, ठीक है। ओ वाई इज द ओरिजिनल इनकम ऑफ अ पर्सन। एट दिस इनकम लेवल ही इज बाइंग ओ क्यू। सपोज यू टॉक अबाउट सॉल्ट। एक गरीब इंसान है तो एक नमक का पैकेट खरीदता है, कमा रहा है, इनकम कम है उसकी। उसकी इनकम बढ़ गई, देखो यहाँ होगी, एरो से बता रहा हूँ, Y1 हो गई। तो अब वो जब Y1 हो गई तो वो सोचता है यार एक पैकेट नमक क्या लेना, 3 पैकेट नमक लेके मैं स्टोर कर देता हूँ, बार बार नहीं आना पड़ेगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ गई शुरू में। अब उसकी इनकम और बढ़ गई, Y2 हो गई, देखो आप। बट एट Y2, ये Y2 है बेटो, तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ी, वो Q1 पर ही है। क्यों? ऐसा थोड़ी होगा कि इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा नमक खाना शुरू कर देगा, इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा चीनी खाना शुरू कर देगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग कि अरे भाई अब तो मैं ज्यादा कमा रहा हूँ तो अब मैं ज्यादा नमक खाऊंगा। अभी तक मैं फीकी चाय ले रहा था क्योंकि मैं गरीब हूँ, अब मैं थोड़ा कमाने लग गया हूँ तो 1 चम्मच चीनी डाल दो। अब मैं और कमाने लग गया हूँ तो अब 2 चम्मच चीनी डाल दो। ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। एक गरीब आदमी पहले 1 किलो चीनी ला रहा था, जो चीनी खत्म हो रही थी तो वो फिर और लेने जा रहा था। जब उसकी इनकम थोड़ी बढ़ी, इनकम है ना, इनकम थोड़ी बढ़ी, तो 1 किलो चीनी की जगह 2 किलो चीनी ले आएगा घर में, कि बार बार चक्कर नहीं लगेंगे लाला पे। तो शुरू में जब इनकम थोड़ी बढ़ी तो व्हाट्स हैपनिंग, क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीज। बट अब उसकी इनकम और बढ़ गई, और कमाने लग गया, तो ये थोड़ी कि पूरा बोरा ले आएगा वो 1 किलो चीनी का, ऐसा थोड़ी होगा। स्पेस की भी जगह। तो यानी कि इनकम और बढ़ेगी अप टू पर्टिकुलर लेवल से, और बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड स्टैग्नेंट हो जाएगी, सेम रहेगी। आई होप इट्स क्लियर। तो आई रीड आउट, inexpensive necessities like matchbox, salt and sugar, quantity purchase increases with increasing income up to a certain income level. Quantity purchased will increase with increasing income up to a certain income level. ठीक है। उसके बाद जब इनकम बढ़ेगी तो वो क्वांटिटी और नहीं खरीदेगा, उतनी खरीदेगा। आई होप इट्स क्लियर। Then we come to third point, consumers taste and preferences. I am over here children. तो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब यह है कि पीपल स्विच ओवर फ्रॉम चीपर ओल्ड फैशन गुड्स टू कॉस्टलियर फैशनेबल गुड्स विच आर इन ट्रेंड। ये तो फैशन की बात करी है मैंने। ओल्ड फैशन कपड़ा हो गया, कोई शर्ट है ओल्ड फैशन की हो गई है, वो डिस्काउंट पे बेच रहा है दुकानदार, मैं नहीं खरीदूंगा। लेट्स से आई एम अ फैशन कॉन्शियस गाय, तो व्हाट विल आई डू, कोई फैशनेबल शर्ट है वो महंगी है, हालांकि वो महंगी है, मुझे ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन मैं स्टिल आई वुड लाइक टू बाय द फैशनेबल product, the shirt which is in fashion, because I want to look nice, I want to be in trend. Okay, same thing happens, let's say olive oil cooking का आता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डॉक्टर्स recommended to middle-aged people to avoid cholesterol and heart problem. So although olive oil is costlier than normal refined oil which are available in the market, and olive oil is imported also, but still people are buying more of olive oil. महंगा होने के बावजूद लोग ज्यादा ऑलिव ऑयल ले रहे हैं क्योंकि भाई वो अब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है ये एग्जांपल, कि कंज्यूमर का टेस्ट या प्रेफरेंसेस जिस प्रोडक्ट के प्रति है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चाहे उसका प्राइस ज्यादा क्यों ना हो। ओके, अब हम आते हैं प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे बेटा। रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, दीज आर ऑफ टू काइंड, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जो एक की जगह दूसरा आप यूज कर सकते हो, जैसे कि प्राइस, कॉफी की जगह हम चाय यूज कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंडिंग। तो सपोज प्राइस ऑफ हमारा प्रोडक्ट है चाय, मैं चाय की बात कर रहा हूँ, लेट्स से आई डील विद, मेरी दुकान है चाय की, खाली मैं चाय में डील कर रहा हूँ, डिफरेंट वैरायटी ऑफ टी आई की। ओके, तो अब मुझे नजर रखनी है कॉफी के प्राइस पे। सपोज प्राइस ऑफ कॉफी, कॉफी जो है वो चाय का सब्स्टिट्यूट है, यू विल अग्री, ठीक है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट? चाय नहीं है तो लोग कॉफी पी लेंगे, कॉफी नहीं है तो लोग चाय पी लेंगे। वन कैन बी यूज्ड, वन प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द अदर। तो जब कॉफी महंगी होगी, एज यू कैन सी प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस एज इंडिकेटेड बाय अपवर्ड पॉइंटिंग एरो, व्हाट हैपेंस, डिमांड फॉर टी विल इंक्रीज। व्हाई? लोग कॉफी की डिमांड कम कर देंगे, जो लोग कॉफी कम खरीदेंगे क्योंकि वो महंगी हो गई, और दे विल स्विच ओवर टू टी।
price of coffee and price